sharing with you PDF. Uh, Good evening, good evening. Okay, 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 that's good. I think today I have share PDF. I think now it's visible. Is it visible? Okay, okay, okay. But there is a problem with this. Again, I have to come back. Again, I have to share PDF. Yeah, I think now it's visible. That is what that is. John Dryden and yeah, even class is also here. I'm recording the whole point. Just I want to tell you कि there are some important things which I want to share. I have just you will find that कि मैंने इसको टच करके कोशिश की है कि आपको और इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. So highlighting here some points. Remember that कि in this class we are talking about John Dryden and you know it very well कि John Dryden he was a what? He was an English poet, literary critic, translator and playwright. So nothing ultimately. In other words, you can say that he was a prolific writer. If I use this particular thing, he was an English poet, literary critic, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट. यू कैन जस्ट गो विद दिस पॉइंट कि एक उनके लिए वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था कि ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. अगर मैं ये बात करूं तो वे कैसे राइटर में शुमार किए जाएंगे? प्रोलिफिक राइटर में शुमार किए जाएंगे. ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट भी थे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि ही बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर एज एंड दैट एज वाज द एज ऑफ restoration age. This restoration age is called restoration age because King Charles II got the throne of England in 1660. Yeah, he restored on the throne of England in 1660. This is why that particular date is important and that age is known as restoration age. I will discuss some other points also. But remember that this man, जो John Dryden है, this man, he was born in 1631 and died in 1700.
This particular date, 1631, he was born. He was born in 1631 and died 1700. In 1700, you will come to know कि near about 60, if I say 68 years, yeah, whatever the time he lived there. This particular duration is also known as the age of Dryden. Why this particular duration is known as the age of Dryden? Because you will come to know ये जो time रहा है age of Dryden को, he was the leading poet of that time. He was the leading poet. This is why that particular age is also known as the age of John Dryden. Second thing I want to tell you कि in this means class, yeah, in this lecture, I'm only telling you about his age. Though I have gone with his age, I was live with you, and you will come to know कि when I have gone, means I have taken class. Then I only told you about what कि some basic things, but I didn't have any point, any written document that time. But today I shared with you what the lecture I delivered. So you will come to know कि here, John Dryden belongs to a particular age, that is Restoration age, born in 1631, died in 1700, and his age is also known as age of John Dryden because he was the leading poet of that time, yeah, of that age. One thing I want to tell you कि he was the leading poet. It means that कि something he did some new thing. He brought some new innovation in poetry. What he did ultimately, you will come to know कि he used heroic couplet. He used wit, satire, irony, courtly manner, and you will also come to know कि so many new things were done by that man. And it is also said that he started to copy, yeah, he started to imitate the literary style, yeah, the literary doctrines or the literary principles of of classical poets, especially Latin poets, it is said. But when he started to imitate them, he did not imitate them as they were imitated by Alexander Pope एंड हिज फॉलोअर्स. कुल मिला के ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने उनको इमिटेट किया या इमिटेट करना शुरू किया, यू विल कम टू नो कि वो उस तरह से इमिटेट नहीं किए गए या उन्होंने वैसा इमिटेट नहीं किया जैसा कि अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने इमिटेट किया. जॉन ड्राइडन के समय से ये सिलसिला शुरू होता है, इमिटेटिंग इमिटेटिंग क्लासिकल पोएट, स्पेशली लैटिन पोएट्स, होमर, उन सब का इमिटेशन, उनकी स्टाइल का इमिटेशन, यू विल कम टू नो उन्होंने उनको इमिटेट किया. बट व्हेन ही इमिटेटेड, so he did not find any strict norms, or there was no concept of correctness as you find especially where as you find in the works of uh, Alexander Pope and his followers. So what I want to say, you will come to know, yeah, you will get the point कि John Dryden was an English poet, literary critic, translator, and playwright. And as a poet, he started to imitate classical poets. Classical poets means Latin poets who came in the age of किंग अगस्टस. किंग अगस्टस के ज़माने में जो पोएट्स आए थे, होमर हो गए, कुछ और भी बड़े नाम, उनको उन लोगों ने इमिटेट किया. बट यहाँ पे जस्ट आई वांट टू टेल यू टू अ थ्री पॉइंट्स. The particular style of imitation that was done by Alexander Pope and his followers, that style you don't find here. अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने उनको बहुत स्ट्रिक्टली जो है इमिटेट किया था. करेक्टनेस था, ह्यूमन नेचर था, एक नाम था, उस नाम से दे डिडेंट कंप्रोमाइज. लेकिन जॉन ड्राइडन में थोड़ा-सा जो है वी फाइंड लिबर्टी. जॉन ड्राइडन वाज़ लिबरल इन इमिटेटिंग. जॉन ड्राइडन ने उनको इमिटेट किया या आप ये कह सकते हैं कि उनको उन्होंने कॉपी किया, लेकिन उनको उन्होंने अपना एकदम से आइडियल नहीं मान लिया था. जॉन ड्राइडन का जो झुकाव था, यू विल कम टू नो कि जॉन ड्राइडन हैड सम इंटरेस्ट इन फ्रेंच लिटरेचर आल्सो. जॉन ड्राइडन का जो इंटरेस्ट था वो फ्रेंच लिटरेचर में भी था, क्लासिक लिटरेचर के साथ-साथ. लेकिन जो अलेक्जेंडर पोप है उनका इंटरेस्ट केवल क्लासिक लिटरेचर में था, क्लासिक राइटर्स,
क्लासिक पोएट्स, उनका लिटरेरी डॉक्ट्रिन्स, लिटरेरी प्रिंसिपल्स, द वे ऑफ राइटिंग, वो सब का सब उन्होंने बिल्कुल फॉलो किया और स्ट्रिक्टली फॉलो किया। नाम्स वर डन, नाम्स वर इस्टेब्लिश्ड, नाम्स वर मेंटेन, एंड इट वाज सेड दैट कि यू कांट लिबरेट योरसेल्फ, बहुत ज्यादा आपको उससे लिबरेट नहीं होना है। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट कि दैट यू आर फ्री, you want to imitate, but you want to imitate them according to your own need, no, not at all, ऐसा उनको इजाजत बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ये चीज थोड़ा सा वी फाइंड दैट कि ये चीज वहां पे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि उनको जो है वो इतने बड़े पोएट थे, हम इसी से समझ सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट ऑफ इंग्लैंड। द ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, दिस इज व्हाट, द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट ऑफ इंग्लैंड। व्हेन आई एम टचिंग द स्क्रीन, इज इट विजिबल? ऐसा तो नहीं कि राइटिंग गड़बड़ हो रही हो? या कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? या क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल? Yeah, okay, okay. So he second point I'm just telling you कि he was the first official poet of England. He got poet laureateship. One thing you have to remember, I have used here two words. One is laureateship and second is the first official poet. And I told you कि दोनों जो है एक ही चीज है, लेकिन ये ऑफिशियल पोएट का जो उनको जो क्रेडिट दिया गया वो इसलिए दिया जाता है, या ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट ऑफ इंग्लैंड because he was nominated by whom? He was nominated by King Charles II. King Charles II ने उनको nominate किया था, and it happened when it happened in the regime of King Charles II. He was the first official poet of England. He got poet laureateship in 1668, 1668 ईस्वी में। You will come to know कि a very important point, a very important thing which we see या which we find is that कि he got what? First official poet of England. He got poet laureateship in 1668 इन द रिजीम ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। और किसके रिजीम में ये चीज उनको मिलता है? इन द रिजीम ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। दिस इज द पॉइंट, किंग चार्ल्स सेकेंड। सो ऑफिशियल पोएट की जहां तक बात है कि इट इज सेड दैट ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट बिकॉज ऑफिशियल जो पोएट था, यू विल फाइंड दैट कि किंग चार्ल्स सेकेंड जस्ट टुक इंटरेस्ट इन हिम and said that he himself elected him as his official poet. This is why he is known as the first official poet. Even laureateship begins with whom? Laureateship begins with बेन जॉनसन। जो laureateship रहा है वो बेन जॉनसन से शुरू होता है। बेन जॉनसन was the first laureate poet. You will come to know कि laureateship begins with whom? Laureateship begins with Ben Jonson. So Ben Jonson was the first laureate poet. Second thing I want to tell you, his age is known as restoration age. This is the thing. His age is known as restoration age, 1660 से 1700, या उन्हीं को हमने क्या कहा, एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी हम कहते हैं। इन 1660, 1660 ईस्वी में, यू विल कम टू नो कि किंग चार्ल्स सेकंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस एंड स्टोर्ड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। देन आई जस्ट टोल्ड यू कि जो उनका एज रेस्टोरेशन एज रहा है उसको क्यों हम रेस्टोरेशन एज कहते हैं, what happened in this age, why is it called restoration age, and why 1700 is important, why 1660 is important। रिमेंबर दैट कि जो 1660 है, या तो हिस्ट्री का एक बड़ा इवेंट हुआ था कि किंगशिप, अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि किंगशिप को चैलेंज किया गया था। किंगशिप खत्म हुआ था 1649 में, और जब किंगशिप 1649 में खत्म हुआ था तो चार्ल्स फर्स्ट को एजासिनेट किया गया था। कब? 1649 में। आफ्टर द एजाजिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के एजाजिनेशन के बाद यू विल कम टू नो कि वो लोग, जो चार्ल्स फर्स्ट का जो एजाजिनेशन हुआ है 1649 में, उसके बाद 11 साल तक इंग्लैंड में डेमोक्रेसी एक तरह से रही है। एंड 11 years
in England you will find ki in from 1649 to 1660, that was a period of 11 years, two people ruled over England. Yeah, two people took a power, two people were in center. And those two people were who? Those two people were Oliver Cromwell and Richard Cromwell. 1649 से लेके 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल, 1658 से लेकर 1660 तक रिचर्ड क्रॉमवेल, दीज टू पीपल, ये दो लोग रहे हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन 1660 उसी दरमियान जो है किंग चार्ल्स सेकंड को मजबूरी में जो है अगर देखा जाए तो अपनी जान बचा करके वो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस चले जाते हैं। बट इन आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड क्रामवेल इन 1660 अगेन इंग्लिश पीपल took interest in his king and they requested King Charles II, who got shelter in France, to leave France and come back to England. तो ये घटना कब की होती? 1660 ईस्वी में। तो 1660 ईस्वी में किंग चार्ल्स सेकंड दोबारा जो है इंग्लैंड की मतलब वहां पे राज सत्ता वो स्थापित करते हैं और इंग्लैंड की गद्दी को अपने हाथों में लेते हैं। ये डेट कब का है? 1660 में। किंग चार्ल्स सेकंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस and stood on the throne of England. This is why the age is known as Restoration Age. If anyone asks you why the age is known as Restoration Age, तो इसके पीछे का जो रीजन है वह एक पॉलिटिकल पॉइंट है। और वह पॉलिटिकल पॉइंट क्या है? वह पॉलिटिकल पॉइंट यही है कि किंग चार्ल्स सेकंड वाज इनवाइटेड बाय इंग्लिश पीपल टू कम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एंड you will come to know कि he came in 1660, got the throne of England in 1660, and it was restarting of kingship. तो it was the restarting of kingship in 1660, 1660 ईस्वी में किंगशिप का यह क्या था? एक तरह से रीस्टार्टिंग था। और कितने साल तक किंगशिप नहीं था? 11 ईयर्स तक। उसका टाइमिंग क्या है? 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक। जब तक किंगशिप नहीं था वहां पे किन लोगों ने रूल किया है? टू पीपल रूल्ड देयर। वो दो लोग कौन कौन से थे? ओलिवर क्रामवेल 1649 से 1658, फिर उसके बाद रिचर्ड क्रामवेल 1658 से लेकर 1660 ईस्वी तक। अगेन 1660 ईस्वी में किंगशिप इस्टेब्लिश होती है। इस वजह से किंगशिप की इस्टेब्लिशिंग के साथ ही उसको क्या कहा गया? रेस्टोरेशन एज कहा गया। And John Dryden was the leading poet of this age. This is why this age is also known as Age of John Dryden. Then I have written कि why the age was famous, what the new thing you find in this age. तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे द एज इज रिमार्केबल फॉर आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट। ये चीजें आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, विट, कोर्टली मैनर, political conspiracy, use of prosaic language in poetry, artificial poems, human nature, heroic tragedy, restoration comedy, and scientific thought. These are the points जो हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू फाइंड इन रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के लिटरेचर में व्हाट हैपेंड, what new things came, what new features do you find? Then you will come to know कि the age is remarkable for what? The age is remarkable for irony, satire, heroic couplet, wit, courtly manner, political conspiracy, use of prosaic language in poetry, artificial poems, human nature, heroic tragedy, restoration comedy, and scientific thoughts. These points you have to remember, because when you take these points, yeah, when you start to talk, it means that you are talking about what? You are talking about restoration age. And you will come to know कि ये सारे points जो है अपने क्लाइमैक्स पर कब देखने को मिलते हैं? इन द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। यही सारी चीजें, हीरोइक ट्रेजिडी, नॉट हीरोइक ट्रेजिडी, वहां पर सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड अदर थिंग्स यू विल कम टू नो दैट वाज अ खासकर हीरोइक कपलेट, सटायर, आयरनी, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नाम्स के साथ ये सब फॉलो की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी थी
दूसरा चीज, आप जस्ट आई वांट टू नो कि हैव यू एनी डाउट टेकिंग दिस थिंग आयरनी सटायर हीरोइक कपलेट, आई थिंक कि हैव यू एनी डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। सो दिस थिंग, next point which you have to go, that is कि in this age one can see the literary figures imitated classic poets। जो लिटरेरी फिगर्स इस एज के थे उन्होंने इमिटेट करना किसको शुरू किया था? क्लासिक पोएट्स को। यह एक दूसरी खासियत थी। दे डिडेंट इमिटेट शेक्सपियर, दे डिडेंट इमिटेट जॉन मिल्टन, दे डिडेंट कॉपीड द लिटरेरी स्टाइल ऑफ एडमंड स्पेंसर। जो एलिजाबेथन लिटरेचर था, जो एलिजाबेथन पोइट्री थी, जो जॉन मिल्टन का अपना स्टाइल था, दैट वर नॉट इमिटेटेड। उन सब चीजों को इमिटेट नहीं किया गया, उन सबको इमिटेट नहीं किया गया। तो क्लासिक पोएट्स एज, उन्होंने किसको इमिटेट किया? होमर को इमिटेट किया। यू विल कम टू नो और भी जो वहां के थे, प्लाउटस थे, टीरेंस थे, वर्जिल थे, थियोक्रिटस थे। ऑल दिस थिंग्स आई हैव रिटन, स्पेशली होमर, लैटिन पोएट्स, तो जो भी लैटिन पोएट्स थे उन सबको इमिटेट किया जाता है। सो यू विल कम टू नो कि हु वर इमिटेटेड, लैटिन पोएट्स वर इमिटेटेड, उसको उन्होंने इमिटेट किया था, क्लासिक पोएट्स, स्पेशली लैटिन पोएट्स जो थे। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, और एक चीज और जो ध्यान में रखना है कि एलिजाबेथन लिटरेरी डॉक्ट्रिन्स एंड जॉन मिल्टन पोएटिक स्टाइल वर डिसरिगार्डेड। यह एक बड़ी बात हुई है। वह एलिजाबेथन जिसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया, उसका जो पोएटिक स्टाइल था, चाहे वो दैट वाज डन बाय हुम, दैट वाज डन बाय विलियम शेक्सपियर, या वेदर दैट वाज डन बाय हुम, वेदर दैट वाज डन बाय एडमंड स्पेंसर या फ्रांसिस बेकन वगैरह जो बड़े नाम रहे हैं, सर फिलिप सिडनी रहे हैं, यू विल कम टू नो कि उन सब लोगों को क्या किया गया था? उनकी स्टाइल को, उनके तरीके को, उन सब चीजों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, तो उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कि चार्ल्स सेकेंड स्पेंट 11 years in France from 1649 to 1660, दिस पर्टिकुलर थिंग 1649 से लेकर 1660 तक। एंड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, he brought with him a new admiration for French literature। It means that कि जो restoration age रहा है, in restoration age you not only found, you not only just find they imitated classical poets, especially Latin poets, Homer or Virgil, but except it in this age we also find the impact of the French literature. And why do you find the impact of the French literature? Because King Charles II just stayed there 11 years. And what is the date of the staying? From 1649 to 1660। 1649 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक वो वहां पे रुके। जब वो 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक वहां पर रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस दरमियान 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक व्हेन ही लिव्ड देयर, यू विल कम टू नो कि पूरा अपने साथ वो एक पूरा एक दस्ता लाते हैं, या उनके साथ सम लिटरेरी फिगर्स, लिटरेरी पर्सनालिटीज, दे केम बैक फ्रॉम फ्रांस। वे फ्रांस से वापस आते हैं, और वे जो है यू फाइंड देयर कि इन दिस इरा वी फाइंड कि most of the literary personalities were the admirer of what they were the admirer of the French literature। So here is another impact, and what is that? Here we find the impact of the French literature, especially its impact can be seen on drama। एक चीज और ध्यान में रखना, इसका जो इम्पैक्ट है वह पोइट्री पर नहीं है, प्रोस पर नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर है? स्पेशली इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन ड्रामा। वो भी स्पेशली कहाँ पर? स्पेशली कॉमेडी। ड्रामा में भी कॉमेडी पर देखा जा सकता है। इवन हीरोइक ट्रेजिडी पर भी उसका प्रभाव था, बट हीरोइक ट्रेजिडी पे जो प्रभाव था वह क्लासिक और फ्रेंच दोनों का रहा है। लेकिन जो कॉमेडी आई है, रेस्टोरेशन कॉमेडी, उस रेस्टोरेशन कॉमेडी को राइट करने में फ्रेंच कॉमिक राइटर मोलियर को जो है इमिटेट किया गया।
तो you will come to know here another point कि in this age you find the impact of the French literature and you will come to know कि किसको जो है यहाँ पे imitate किया गया. You will find the impact of the French literature, especially whom, कॉमेडी को इसका इम्पैक्ट. और उसमें भी कॉमेडी में फ्रेंच कॉमिक प्ले राइट मोलियर, हियर इज द नेम Molie. Here you will get, again I would like to spell Molie. French comic playwright Molière was imitated for writing what? For writing restoration comedy. रेस्टोरेशन एज में जो कॉमेडी लिखी गई उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर. एंड यू विल कम टू नो कि हियर द मैनर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास वर इमिटेटेड. इट वाज टोल्ड कि what type of manner they have, what they did, especially you find lust, passion, backbiting, intriguing, and मीन्स समथिंग जो बहुत अच्छा नहीं था. You don't find any goodness, you don't find any morality, you don't find any type of uh, you can just say कि uplifting of soul or heart, such a thing you don't find. तो इस तरह का नहीं, बल्कि रेस्टोरेशन कॉमेडी को यहाँ पे इमिटेट किया गया. रेस्टोरेशन कॉमेडी को यू फाइंड कि वो लिखा गया और उसमें ये सारी चीज देखने को मिलती है. इवन व्हाट यू सी कि दैट इज अनदर पॉइंट कि इन राइटिंग ट्रेजिडी, ट्रेजिडी को राइट करने में क्या किया गया. इन राइटिंग ट्रेजिडी बोथ फ्रेंच एंड क्लासिक मॉडल्स वर कंबाइंड. एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब ट्रेजिडी को लिखा गया तो चीज क्या किया गया, बोथ फ्रेंच एंड क्लासिक मॉडल्स वर कंबाइंड, दोनों का असर, टू प्रोड्यूस अ न्यू टाइप कॉल्ड द हीरोइक प्ले. इसका मतलब कि जिस एज की हम लोग बात कर रहे हैं उस एज में ड्रामा में दो चीजें आती हैं. वे दो चीजें क्या होती हैं, एक तो रेस्टोरेशन कॉमेडी होता है और दूसरा क्या होता है, हीरोइक ट्रेजिडी. यू विल कम टू नो कि जो हीरोइक प्ले था या जो हीरोइक ट्रेजेडी है, इसको कंपोज करने के लिए शेक्सपियर को इमिटेट नहीं किया गया, बल्कि शेक्सपियर बिकेम आउट ऑफ पैशन. इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग शेक्सपियर, you will come to know कि to write restoration tragedy or heroic tragedy, we find that they imitated classical writers and French writers. फ्रेंच जो लिटरेरी जो फ्रेंच स्टाइल था टू राइट ट्रेजिडी या टू कंपोज ट्रेजिडी, और जो क्लासिक ग्रीक जो स्टाइल ट्रेजिडी का था उसको उन्होंने किया. तो अगर इफ द क्वेश्चन कम्स, अगर क्वेश्चन कभी आता है कि ड्रामा पे आप किसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो फ्रेंच का भी और क्लासिक का भी है. लेकिन कॉमेडी पर किसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि फ्रेंच राइटर्स का ही देखने को मिलेगा. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस पूरे पेज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है. जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन 1631, डाइड इन 1700. जॉन ड्राइडन पोएट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर है, प्ले राइट है. क्या नहीं है वो, अगर नहीं है तो नावलिस्ट नहीं है. उस समय तक नावल का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा था. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, he belongs to a particular age. That age was the restoration age, जिसका डेट 1660 से 1700 तक है. 1660 में किंग चार्ल्स सेकेंड came by from France to England. This is why that particular date is known as restoration age, because in that age kingship, again we find establishing of kingship in England. And in 1700 John Dryden died, and with the death of John Dryden it is said that कि restoration जो एज था वह खत्म हो गया. उसके बाद एक नए एज का ऑगस्टन एज की शुरुआत होती है. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट ऑफ इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के पहले ऑफिशियल पोएट थे. रिमेंबर दैट व्हेन यू से ही वाज द फर्स्ट
ऑफिशियल पोएट ऑफ इंग्लैंड, देन यू विल कम टू नो कि ये चीज उनको कब मिलता है, 1668 में, इन द रिजीम ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, इन द रिजीम ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। दूसरा चीज, उनका जो एज है वह एज रिस्टोरेशन है 1660 से 1700। 1660 ईस्वी में किंग चार्ल्स सेकेंड आते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेस्टोरेशन एज, उनका एज किसके किसके लिए फेमस है? आयरनी के लिए, सटायर के लिए, हीरोइक कपलेट के लिए, विट के लिए, कोर्टली मैनर के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए, यूज ऑफ प्रोजाइक लैंग्वेज इन पोइट्री, आर्टिफिशियल पोएम्स, ह्यूमन नेचर, heroic ट्रेजिडी, restoration कॉमेडी एंड साइंटिफिक थॉट। साइंटिफिक थॉट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अभी जब मैं रॉयल सोसाइटी की बात करूंगा कि रॉयल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1660, तब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि उनका जो एज रहा है, उस एज में वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिकल पोएट्स, स्पेशली जो इस समय का लिटरेचर है। यू फाइंड कि इस समय के लिटरेचर में ना तो मिल्टन को फॉलो किया गया, ना ही जो है एलिजाबेथन लिटरेचर को फॉलो किया गया। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दीज राइटर्स, वी फाइंड दैट कि दे इमिटेटेड हुम, दे फॉलोड हुम, दे फॉलोड क्लासिकल पोएट्स, क्लासिकल्स को। जब उन्होंने क्लासिकल को फॉलो किया तो उसमें एक बड़ा नाम होमर का है। और लेकिन उन्होंने जब उनको फॉलो किया तो एक फ्रीडम के साथ फॉलो किया, इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जैसा कि आने वाले समय में जब मैं अलेक्जेंडर पोप को पढ़ाऊंगा, स्ट्रिक्ट नाम्स है, रूल रेगुलेशन, नो फ्रीडम वाज गिवन कि यू कैन चेंज द पार्टिकुलर वे ऑफ इमिटेटिंग, या उनकी स्टाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं इस तरह का। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये आप देखेंगे क्लासिक राइटर्स को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ फ्रेंच लिटरेचर का भी इम्पैक्ट इनके एज में देखने को मिलेगा। फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिलता है कि किंग चार्ल्स सेकेंड जो थे वो इंग्लैंड 1649 ईस्वी में छोड़ के चले गए थे, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 11 वर्षों तक वो फ्रांस रहे, फ्रांस से 11 साल के बाद उनकी वापसी होती है। तो ही केम विद हुम, ही केम विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच लिटरेरी जो फिगर्स थे, पर्सनालिटीज उनके साथ आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्पेशली कॉमेडी पर, रेस्टोरेशन कॉमेडी में। रेस्टोरेशन कॉमेडी मैंने बताया कि टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच यू फाइंड द मैनर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास इंट्रीगिंग, बैक बाइटिंग, लस्ट, पैशन, कॉन्स्पिरेसी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, लैक ऑफ वर्च्यू, गुडनेस, मोरालिटी, इस तरह का कोई बात नहीं होती, बल्कि एक विट है उस वहां पर भी, वहां पर भी सटायर है, आयरनी है, प्रोजाइक लैंग्वेज है, एक ह्यूमन नेचर को लेकर के वहां पे बात कही गई है। अब उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि इस एज में ड्रामा में जो हीरोइक ट्रेजेडी है, उस हीरोइक ट्रेजेडी का जो थीम रहा है लव और वायलर रहा है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था। और इसके अलावा जो ये थीम लव और वायलर रहा है, इस लव और वायलर में आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट रहा है क्लासिक ट्रेजेडी का भी और फ्रेंच ट्रेजेडी का भी इम्पैक्ट रहा है। और इसको जो शुरू करने वाले तो कई जो लोग भी रहे हों, लेकिन उनमें से एक बड़ा नाम अगर कोई रहा है तो कौन रहा है? जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ने, मैंने बताया था, ऑल फॉर लव लिखा जो 1678 ईस्वी में आई। और जो ऑल फॉर लव रहा है वह उनका एक ऐसा प्ले रहा जो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा पर था। और वो जो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा पर था, उसमें उन्होंने शेक्सपियर की जो कैरेक्टर हीरोइन जो क्लियोपैट्रा है, जो उनका हीरो एंटनी है, उससे थोड़ा सा अलग दिखाया हुआ है कि इनमें डिविनिटी है, सिलेस्टियल ब्यूटी है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज कि व्हाट अदर थिंग्स यू फाइंड इन दिस एज। अदर थिंग्स आर कि इस एज में ये दिखाने की कोशिश की गई द करेक्ट स्कूल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, द करेक्ट स्कूल। द करेक्ट स्कूल का मतलब यहाँ पे हो गया कि जिस तरह से वो थे क्या, आपके इस समय के राइटर्स ने क्लासिक राइटर्स को फॉलो किया या क्लासिक राइटर्स को इमिटेट किया, तो जैसा करेक्टनेस, जैसा नाम, जैसा रूल और रेगुलेशन या स्ट्रिक्टनेस
अलेक्जेंडर पोप के समय आपको देखने को मिलेगा, वैसा आपको इस समय देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे द करेक्टनेस इज अनदर फीचर ऑफ दिस एज। करेक्टनेस मीन्स ऑडियंस ऑफ इंथ्यूसिज्म, सॉरी एवाइडेंस ऑफ इंथ्यूसिज्म, नॉट एवाइडेंस ऑफ इंथ्यूसिज्म, moderate opinions, moderately expressed, strict care and accuracy. What I want to say, strict care or accuracy. These 2 points you have to remember. When it is said ki correctness, तो strict care and accuracy in poetical technique and humble imitation of the style of Latin classic. जो लैटिन क्लासिक्स थे, जो लैटिन पोएट्स थे, उनकी स्टाइल को फॉलो किया गया, लेकिन कैसे फॉलो किया गया? स्ट्रिक्ट केयर और एक्यूरेसी के साथ। तो अगर कभी भी बात आती है करेक्टनेस, तो करेक्टनेस की शुरुआत यहाँ तो होती है, लेकिन उसका क्लाइमैक्स कहाँ देखने को मिलेगा? यू विल फाइंड ओनली इन द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, दैट वाज ऑगस्टन एज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो करेक्टनेस भी एक फीचर है। करेक्टनेस का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी राइटर को, जो क्लासिक राइटर्स हैं, उनकी स्टाइल को अगर आप इमिटेट कर रहे हैं, उनकी स्टाइल को अगर आप कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छे ढंग से कॉपी करिए, उसमें बदलाव ना लाइए। ऐसा ना हो कि अपने ढंग से उसको क्या कर दीजिए कि उस नाम को, उस स्टाइल को बदल दीजिए और बहुत लिबर्टी लीजिए, फायदा उठाइए। इस तरह की चीजों को बाद में अलेक्जेंडर पोप ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि आपको हीरोइक कपलेट में ही लिखना, अगर हीरोइक कपलेट में लिखें तभी आप एक अच्छे पोएट माने जाएंगे। ड्राइडन डिड नॉट अटेन ऑल टुगेदर टू दिस आइडियल। लिखा भी गया ड्राइडन को इस आइडियल को, इसमें लिखा गया कि ड्राइडन को जो ये ड्राइडन डिड नॉट अटेन ऑल टुगेदर टू दिस आइडियल, ड्राइडन इस आइडियल को नहीं फॉलो कर पाए थे। कौन से आइडियल को? करेक्टनेस को। पोप एंड हिज इमीडिएट सक्सेसर कॉल्ड हिम कॉपियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोप और उनके जो इमीडिएट सक्सेसर थे, उन्होंने उनको क्या नाम दिया? कॉपियस, COPIOUS। कॉपियस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि उसमें लिबर्टी ला दे रहे हैं। और लिबर्टी लाने की वजह से जो नाम्स है, जो स्ट्रिक्टनेस जो फॉलो होना चाहिए था, यू डोंट डू दैट थिंग, इसलिए उनको कॉपियस कहा गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ड्राइडन, ड्राइडन के लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फर्स्ट अप्लाइड द एपिथेट ऑगस्टन। ऑगस्टन शब्द जो है सबसे पहले अगर किसी के लिए अप्लाई किया गया, तो जॉन ड्राइडन के लिए अप्लाई किया गया। इसको किसने अप्लाई किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अप्लाई किया है। किसके लिए? जॉन ड्राइडन के लिए। सेइंग दैट, उन्होंने कहा, क्या कहा? ड्राइडन डिड नॉट, पर ये यहाँ गलत हो गया। ड्राइडन डिड नॉट नहीं होना चाहिए, ड्राइडन डिड टू इंग्लिश लिटरेचर व्हाट ऑगस्टस डिड टू रोम। ये लाइन पूछी जा चुकी है। ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर में वही काम किया जो किंग ऑगस्टस ने रोम में किया। विच ही फाउंड ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल, वो उसको जो है ब्रिक के रूप में पाए थे और मार्बल में तब्दील कर दिए। ये बड़ी बातें जो है किसके बारे में कही गई? जॉन ड्राइडन के बारे में। कौन कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ड्राइडन इज द फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू आइडियाज। ये जो नया विचार आया, नया आइडियाज आया, उसको लाने वाले कौन थे? जॉन ड्राइडन थे। दैट वर टू डोमिनेट आवर लिटरेचर टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और इसका प्रभाव 18th सेंचुरी तक देखा जाता पूरा, जिसको 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज, प्रोज एंड नावल कहा गया, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा। तो इसकी शुरुआत जॉन ड्राइडन से होती है, और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? 18th सेंचुरी के एंड तक जाकर के आपको देखने को मिलेगा। इन द एज ऑफ ड्राइडन, शेक्सपियर एंड मिल्टन वर आउट ऑफ फैशन। शेक्सपियर और मिल्टन का बहुत ज्यादा प्रभाव इस एज में नहीं रहा है। एलिजाबेथ एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म वाज रिप्लेस्ड बाय क्लासिसिज्म। जो एलिजाबेथन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म था, उसकी जगह कौन ले लिया? क्लासिसिज्म। लैटिन जो पोएट्स थे, उनका स्टाइल और सब चीजें। और इस एज में कुछ क्रोनोलॉजी रहो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उसमें से है कि थिएटर वाज रीओपन इन 1660, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1688, जिसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। चार्ल्स सेकंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। फिर है द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन 28 नवंबर 1660। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉयल सोसाइटी का। 28 नवंबर 1660 ईस्वी को रॉयल सोसाइटी बनी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव द नेचुरल नॉलेज,
नेचुरल नॉलेज को सुधार लाना। इट वाज यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल एकेडमी, यह जो है यूनाइटेड किंगडम का एक तरह से नेशनल एकेडमी था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस था। साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हुई थी उसमें बहुत सारी चीजें हुई। इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे, रॉबर्ट बॉयल थे, क्रिस्टोफर रेन थे, और विलियम पेटी थे। तो इन टूडेज क्लास आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, और जॉन ड्राइडेन से के एज की क्या क्या खासियत रही, जो मैंने लाइव आकर के दिया था, मैंने रिटन डॉक्यूमेंट में भी आपको दिया है। इसके अलावा 5 पेज का और मैटर जो है डाला गया है ग्रुप में, जिसमें जॉन ड्राइडेन के जितने वर्क्स है उसको लेकर के बात कही गई। बहुत पहले मैंने एक बार पढ़ाया था ड्राइडेन को, तो उसमें आज पीडीएफ आया हुआ है, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, और अगली क्लास में मैं उसको करूंगा। तो बस मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ, और वी विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स, या जो भी समय इस समय हो रहा होगा, हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट बाद अभी मिलेंगे दूसरी क्लास के लिए, और वो जो होगी टीजीटी पीजीटी के प्लेटफॉर्म से होगी।